وہ دونوں کاروبار کرنے امریکہ کے شہر سان فرانسسکو آئے، لیکن ایک ہفتے بعد ہی انہیں ایک خط موصول ہوا جسے پڑھنے کے بعد ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ دونوں کون تھے؟ خط میں کیا تھا؟ اور خط پڑھنے کے بعد ان کے ذہن میں ایسا کون سا خیال آیا جس سے پہلے وہ قرضوں میں ڈوبے اور پھر اربوں میں کھیلنے لگے؟ جو آج دنیا بھر کے لوگوں کے گھر یا کمرے کرائے پر چڑھا رہے ہیں، ان پر ایک وقت ایسا بھی تھا جب اپنے کمرے کا کرایہ دینے کے پیسے کم پڑ گئے تھے۔ پھر وہ ایک ایسا تصور لے کر آئے جس نے گھر یا گھر کا کوئی حصہ کرائے پر دینا اور لینا بہت ہی آسان بنا دیا۔ ویسے تو اپنے گھر کا کوئی ایک کمرہ چند دن کے لیے کسی بالکل ہی انجان شخص کو کرائے پر دینا بہت عجیب معلوم ہوتا ہے۔ پاکستان میں شاید اب بھی لوگ اس تصور سے اطمینان محسوس نہ کریں کہ کوئی اجنبی ان کے ہاں آئے، قیام کرے، کرایہ ادا کرے اور چلا جائے، لیکن مغرب میں یہ تصور عام ہوتا جا رہا ہے۔ مختصر مدت کے لیے کسی جگہ قیام کرنا ہو تو لوگ اسی سہولت سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ ذکر ہو رہا ہے ایئر بی این بی کا۔ یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو عارضی رہائش کی سہولت دینے والوں اور عارضی رہائش تلاش کرنے والوں کا آپس میں رابطہ کراتی ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ گھروں کی اوبر یا کریم ہے۔ مثلا آپ کا لاہور میں گھر ہے جس کا ایک کمرہ خالی پڑا ہے، آپ کمرے کی تصاویر کھینچتے ہیں اور ایئر بی این بی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، ساتھ ہی آپ لکھ دیتے ہیں کہ کمرے کا روزانہ کا کرایہ اتنا ہوگا۔ اب کسی نے لاہور آ کر ٹھہرنا ہے تو وہ ایئر بی این بی کی ویب سائٹ پر جائے گا، اسے آپ کے کمرے کی تصاویر اور کرایہ مناسب لگے گا تو وہ ویب سائٹ سے ہی کمرہ بک کر دے گا، ساتھ ہی وہ کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی کر دے گا، پیسے سیدھے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے اور اس کا کمیشن ایئر بی این بی کی جیب میں چلا جائے گا۔ ایئر بی این بی دو دوستوں نے شروع کی تھی۔ اس کے خیال سے لے کر کامیابی تک انہوں نے بہت برا وقت دیکھا، ان پر قرضے بھی چڑھ گئے، لیکن دسمبر 2020 کی ویلیویشن کے مطابق اس کمپنی کی ویلیو 75 ارب ڈالر تک بھی پہنچی۔ سیلف ہیلپ اردو کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان دوستوں کو ایئر بی این بی کا خیال کیسے آیا اور خیال، مشکلات اور پھر کامیابی تک کے سفر میں کیا کیا کچھ ہوا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ ایئر بی این بی جن دو دوستوں نے شروع کی ان میں سے ایک کا نام تھا جو گیبیا اور دوسرے تھے برائن چیسکی۔ یہ دونوں کاروبار کرنے امریکہ کے شہر سان فرانسسکو آئے اور ایک کمرہ کرائے پر لے لیا، لیکن انہیں رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ مالک مکان کا خط آ گیا جس میں لکھا تھا کہ اس مہینے سے کرایہ 25% بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ خط پڑھ کر ان کے پسینے چھوٹ گئے، وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں گے۔ اس پریشانی میں جو گیبیا کو ماضی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکہ میں لوگ وہ چیزیں بیچ دیتے ہیں جو پرانی ہو جائیں، اور پرانی چیزیں بیچنے کے لیے وہ اپنے گھر کے صحن میں رکھ دیتے ہیں، اسے یارڈ سیل کہا جاتا ہے۔ تو جو گیبیا اسی طرح اپنے صحن میں چیزیں بیچ رہا تھا کہ ایک بندہ آیا اور اس سے کوئی چیز خریدی۔ اس دوران دونوں میں گپ شپ شروع ہو گئی۔ بندے نے جو کو بتایا کہ وہ سیر و سیاحت پر نکلا ہے اور اس علاقے میں کسی کو نہیں جانتا، تو جو نے اسے کافی کے لیے انوائٹ کر لیا۔ کافی کے بعد جو نے پوچھا اس بندے سے کہ بھائی آپ رات کہاں گزاریں گے؟ اس بندے نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو جو نے اوپر سے اسے آفر کی کہ اس کے گھر میں ایک فالتو گدا موجود ہے، اگر وہ چاہے تو رات اس پر سو سکتا ہے۔ جو کا خیال تھا کہ میں نے تو مروتاً آفر کی ہے، جس کے جواب میں وہ بندہ کہے گا کہ نہیں جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، میں کہیں اور رات گزار لوں گا، کوئی اور بندوبست کر لوں گا۔ لیکن جناب وہ بندہ تو مان ہی گیا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے گدا بچھا دیں، میں اسی پر سو جاؤں گا۔ تکلف میں کی گئی اس آفر کو اس اجنبی نے قبول تو کر لیا، لیکن جو صاحب وہ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں یہ بندہ کیسا ہو، رات کو انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی چیز نہ چوری کر لے۔ خیر رات خیریت سے گزر گئی اور جو کے تمام خدشات غلط ثابت ہوئے۔ اب سان فرانسسکو میں کرایہ بڑھنے کے بعد ایک طرف تو جو کو یہ واقعہ یاد آ رہا تھا،
साथ ही वो लैपटॉप खोलकर नेट सर्फिंग भी कर रहा था। इंटरनेट से जो को मालूम हुआ कि सैन फ्रांसिस्को में एक डिज़ाइन कॉन्फ्रेंस हो रही है और कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि तमाम होटल्स बुक हो चुके हैं, आने वालों को अपनी रिहाइश का बंदोबस्त खुद ही करना होगा। ये पढ़कर जो ने अपने कमरे को देखा और सोचा कि उसके पास इतनी जगह तो है कि 3-4 लोगों को मेहमान बना सकता है, और उसकी अलमारी में चंद एयर बेड भी मौजूद है। एयर बेड वो गद्दा होता है जिसमें हवा भरकर उसे फुलाया जा सकता है। उसने सोचा कि न सिर्फ हम लोगों को रहने की जगह देंगे बल्कि सुबह उठकर उन्हें नाश्ता भी बना देंगे, उन्हें एयरपोर्ट से जाकर पिक भी कर लेंगे, अगर उन्होंने कहा तो सैन फ्रांसिस्को में घुमा फिरा भी देंगे। तो जो गेबिया और ब्रायन चेस्की ने उसी वक्त एक वेबसाइट बनाई जिसमें ऑफर की गई कि अगर आपने सैन फ्रांसिस्को में रात क़याम करना है तो आप हमारी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वेबसाइट का एड्रेस था airbedandbreakfast.com। वेबसाइट लॉन्च होते ही उन्हें दुनिया भर से ईमेल्स मिलना शुरू हो गई। जो लोग डिज़ाइनर कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे उन्हें क़याम के लिए जगह दरकार थी, तो उनके यहाँ जो और ब्रायन के यहाँ 3 लोग आकर ठहरे और उन्होंने हर बंदे से लिए $80। लेकिन जनाब जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई तो काम एक बार फिर ठंडा पड़ गया। अब उन्होंने सोचा कि इसी काम को फैलाया कैसे जाए। वो ये भी सोचने लगे थे कि ज़रूरी तो नहीं कि किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले लोग ही उनकी वेबसाइट इस्तेमाल करें। कोई बंदा वैसे सैर के लिए किसी जगह गया है और वहाँ ठहरना चाहता है तो वो भी उनकी वेबसाइट इस्तेमाल कर सकता है। अब आहिस्ता आहिस्ता उनका आइडिया डेवलप होने लगा। अभी तक तो वो खुद अपनी जगह आर्जी रिहाइश के लिए पेश कर रहे थे। उन्होंने वेबसाइट रीडिज़ाइन की और उसमें ये सहूलत शामिल की कि कोई भी बंदा अगर अपना कमरा या कमरे में जगह रेंट पर देना चाहता है तो वो वेबसाइट पर उसे लिस्ट कर सकता है। बिजनेस मॉडल उन्होंने ये बनाया कि कमरा किराए पर लेने वाला मालिक मकान को जो किराया देगा वो उसका कुछ हिस्सा अपने कमीशन के तौर पर वसूल करेंगे। उस वक्त 2008 में अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रहे थे, तो अमेरिकी शहर डेनवर में डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन होना था जिससे बराक ओबामा ने खिताब करना था। उस कन्वेंशन में लोगों की बड़ी तादाद दूसरे शहरों से शिरकत के लिए आ रही थी और तमाम होटल्स बुक हो चुके थे। वहाँ का मेयर ये सोच रहा था कि क्यों ना लोगों को पार्क में अपने कैंप लगाने की इजाज़त दे दी जाए। जब जो गेबिया तक ये खबर पहुंची तो उसने सोचा कि बस यही मौका है अपनी इस वेबसाइट या सर्विस को बेचने का। तो वो डेनवर चले गए, वहाँ लोगों से मिले, सहाफ़ियों से मिले, उनकी थोड़ी बहुत मशहूरी हो गई और लोगों ने वेबसाइट पर रजिस्टर भी कराया। लेकिन कन्वेंशन ख़त्म हुआ तो काम फिर ठप हो गया। अब वो मायूस होते जा रहे थे, कोई इन्वेस्टर भी हाथ पकड़ने को तैयार न था। रोज़ाना के खर्चे क्रेडिट कार्ड्स के सर पर पूरे हो रहे थे। इसका ये मतलब है कि कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। इस दौरान उन्हें ख्याल आया कि उनकी वेबसाइट है एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट, तो नाश्ते में जो सीरियल दिए जाते हैं क्यों ना वो सीरियल खुद बनाने शुरू कर दिए जाएं। वो इलेक्शन के दिन थे तो उन्होंने सोचा कि जो नाश्ते वाले सीरियल वो बनाना चाहते हैं क्यों ना उनके नाम भी सियासी किस्म के रख दिए जाएं। उस वक्त बराक ओबामा का मुकाबला जॉन मकेन से था, तो उन्होंने सीरियल्स का नाम सोचा ओबामा ओज और कैप्टन मकेन। कमरे किराए पर चढ़ाते चढ़ाते अब वो नाश्ते वाले सीरियल बनाने लग पड़े। सीरियल बनाने के लिए तो कोई फैक्ट्री वगैरह भी लगाना पड़ती है, इसका सरमाया उनके पास था नहीं। तो हल उन्होंने ये सोचा कि पैकिंग अपनी बनाएंगे, बाजार से जाकर दूसरी कंपनियों के सीरियल खरीदेंगे, अपनी पैकिंग में डालेंगे और बेच देंगे। उन्होंने तैयार कराए 500 डब्बे और सीरियल के एक पैकेट की कीमत जो कि $3 से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये चूँकि उनके सीरियल सियासी सीरियल थे तो उन्होंने हर पैकेट की कीमत रखी $40। 100 के करीब डब्बे उन्होंने मीडिया वालों को भेजे जिससे मशहूरी वगैरह हो गई और लोगों ने $40 देकर सारे डब्बे खरीद लिए। इस तरह उन्होंने कमा लिए 500 डब्बे बेचकर $20,000। इस मौका पर उनका राब्ता हुआ एक कंपनी से जो स्टार्टअप्स को सरमाया फराहम करती है और रहनुमाई भी देती है।
कंपनी वालों ने उनसे पूछा कि इस वक्त तक उनकी वेबसाइट पर ज्यादा कस्टमर किस शहर से हैं। उन्होंने कहा न्यूयॉर्क से। तो कंपनी वालों ने कहा कि आप वहां जाएं जहां आपके कस्टमर्स हैं। अब जो गेबिया ने अपनी वेबसाइट देखी तो उसे ये एहसास भी हुआ कि लोग अपने घरों के या कमरों के जो फोटोज़ लगा रहे हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। लोगों को अच्छी फ़ोटोज़ खींचने का तरीका नहीं मालूम। अक्सर फ़ोटोज़ लोग रात को खींचते हैं जब रोशनी कम होती है और वो अपलोड कर देते हैं, और जब फ़ोटोज़ अच्छे नहीं होते तो ज़ाहिर है उनका कमरा भी किराए पर नहीं चढ़ता। तो जो गेबिया फोटोग्राफी भी जानता था, उसने फैसला किया कि एक हफ्ते के लिए वो न्यूयॉर्क जाएगा और लोगों को मुफ्त में अच्छी तस्वीर भी खींच कर देगा। जब वो तस्वीर खींचने पहुंचा तो उन लोगों से गपशप भी लगाई जो कमरे रेंट पर दिया करते थे, और उनसे ये भी पूछा कि वो ये वेबसाइट एयरबीएनबी कैसे इस्तेमाल करते हैं। उससे मालूम हुआ कि वेबसाइट के डिज़ाइन में भी चंद बुनियादी किस्म की खामियां थीं। जो के ख्याल में जो काम 3 क्लिक्स में हो जाना चाहिए था उसके लिए लोगों को 10 से 12 क्लिक्स करना पड़ते थे, और इस बात का जो को पहले अंदाज़ा ही नहीं था। वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस इतना मौसर नहीं था जितना कि होना चाहिए था, एफिशिएंट नहीं था। तो फिर उन्होंने वेबसाइट का इंटरफेस भी बेहतर किया और इस सब के नतीजे में उनके कस्टमर्स बढ़ गए। पहले वो हफ्ते का $200 कमा रहे थे फीस की मद में, और कमाई की ये शरह तकरीबन 6 माह से ऐसे ही थी। लेकिन बेहतर तस्वीर खींचने के बाद और यूज़र इंटरफेस बेहतर बनाने के बाद उनकी एक हफ्ते की कमाई बढ़कर $400 तक पहुंच गई, और इसके बाद वो कमाई भी बढ़ती गई। फिर मज़ीद इन्वेस्टर्स की नज़रों में भी वो आ गए, उन्हें मज़ीद पैसा भी मिल गया, उन्होंने टीम हायर कर ली और यूं उसे अपने काम को फैलाते चले गए और कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए। ख्याल आने से लेकर वो मौका आने तक जिसे कामयाबी कहा जा सकता है, जो गेबिया और ब्रायन चेस्की को तकरीबन 3 साल तक का अरसा लगा। ये तमाम बातें आपको बताने का मकसद ये है कि कामयाबी एकदम नहीं मिल जाती। ऐसा नहीं होता कि आज कोई काम शुरू किया और कल कामयाबी मिल जाए, बल्कि कोई ख्याल जहन में आने, उस पर अमल शुरू करने और कामयाबी तक पहुंचने में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत बार नाकामी का मुंह देखना पड़ता है, बहुत दफ़ा अपने ख्याल की बुनियाद में ही तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, बहुत दफ़ा सिर्फ खर्चे पूरे करने के लिए भी कोई दूसरा काम करना पड़ता है, तब जाकर कामयाबी मिलती है। लेकिन लगे रहें और अपनी समत दुरुस्त रखें। अगर गलत है तो उसे दुरुस्त करते चले जाएं तो कामयाबी ज़रूर मिलती है।